Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. We're going to see state of matter and we have started our gases chapter. So for the first law, we're going to discuss Boyle's law. Alright. There were three laws that were based on ideal gases and it was only valid on ideal gases, not on real gases. So we'll see the limitations and why they were not valid on the real gases. Let us see what is Boyle's law. Boyle's law was proposed by Robert Boyle, and this law shows the relationship. Basically, these three laws shows the relationship between pressure, volume, and temperature in the gases. So what this law shows, this law shows the relationship between pressure and volume of a gas, and then temperature is kept constant, right? So the statement, according to this statement, the volume of a gas is inversely proportional to the pressure, keeping the pressure constant. अब इसका मतलब क्या हुआ? Volume is inversely proportional to the pressure. Alright, for example, take an example of a balloon. Okay, balloon के अंदर we have volume. अगर हम pressure दबाएंगे, pressure देंगे तो balloon का volume कम हो जाएगा. So this shows that pressure is inversely proportional to the volume. Volume कम होएगा क्योंकि हम pressure बढ़ाएंगे. तो let us see mathematically. Volume is inversely proportional to the pressure, but keep one thing in mind कि volume जो है वो इस वाली equation के directly proportional है, लेकिन according to the statement it is inversely proportional. So if we remove the proportionality sign, we added k, and k is the proportionality constant that has the value 1. So this is the equation of Boyle's law. PV is equal to K. Alright. But according to the above equation, PV is equal to K shows the product of the pressure and the volume. The gas always remain constant. Alright. This value shows that the product of the pressure and volume is always constant in the gas because of the temperature. So if we do the derivation, for example हमारे पास एक इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को अगर हम कंपेयर करेंगे, इनिशियल स्टेट के अंदर क्या होगा, प्रेशर P1 होगा, V1 होगा इज इक्वल टू K. प्रेशर जब फाइनल स्टेट आ जाएगी तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा. तो वी आर नाउ इक्वेटिंग दीज टू एंड हमने क्या लिख दिया, P1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. Okay, now here comes the graphical representation. If we take the example of inverse relation, because we know that volume and pressure have the inverse relation. So देखो pressure बढ़ रहा है और volume कम हो रहा है, ठीक है. So the graph between them is parabolic. Always remember that it might come in MCQs that the graph of Boyle's law is parabolic, but if we see the relationship between, as I previously mentioned, that volume and 1 upon P have the direct relation. So डायरेक्ट रिलेशन का मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी. मतलब यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम 1 अपॉन वी बढ़ रहा है तो 1 अपॉन पी भी बढ़ेगा. दिस शोज़ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ, मीन्स डायरेक्टली के अंदर होता है. नाउ इफ़ यू लुक इनटू द KMT एक्सप्लेनेशन, वी नो दैट KMT काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर फर्स्ट वीडियो, गो चेक दैट आउट. क्या कहती है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डिक्रीजेस देन द कोलिजन बिटवीन. ओके देखो, वी हैव टेकन अ कंटेनर जो कि जिसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है और इसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़ा वॉल के कंटेनर से मतलब क्या बोलते हैं, टकराएंगे, ठीक है, टकरा रहे हैं. तो इसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है तो हमारे पास प्रेशर कम होगा. लेकिन अगर हम छोटा बॉक्स लें और छोटे के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास उतने ही हैं जितने इतने हैं, तो किसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, छोटे वाले के अंदर ज़्यादा होगा. तो लेट अस सी, द वॉल्यूम ऑफ द गैस is decreases then the collision between the molecules of the wall container increases, so the pressure is increased and vice versa. इसमें भी यही बता रहा है कि V2 जो है is less than V1. क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, हालांकि इसके अंदर कम होगा बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्यूम. सो P2 यहाँ पे ज़्यादा होगा और P1 यहाँ पे कम होगा. P2 यहाँ पे ज़्यादा होगा, P1 यहाँ पे कम होगा. बस यही बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम अगर हम कम करेंगे तो हमारे पास जैसे इसके अंदर देखें वॉल्यूम कम है तो हमारे पास कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंटेनर विल बी इंक्रीज, क्योंकि छोटी जगह है और मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से टकराएंगे, वॉल से टकराएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा. एक छोटा सा कंटेनर उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा, कम,
ऑफ कोर्स कम होगा, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम कम है, मतलब इसके अंदर जगह कम है, तो प्रेशर बढ़ने की तादाद ज़्यादा होगी. ओके. ना बॉयल्स लॉ की लिमिटेशन मीन्स द थिंग दैट बॉयल्स लॉ कैन नॉट डिफाइन. लोगों ने उनसे पूछा तो दे कैन नॉट डिफाइन. द बॉयल्स लॉ इज नॉट फॉलोड बाय द रियल गैसेस, क्योंकि हमारे पास एक सवाल आया था कि जब क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि बॉयल्स लॉ के अंदर अगर हम प्रेशर को इतना ज़्यादा कर दें कि वॉल्यूम उस चीज़ का, उस गैस का ज़ीरो हो जाए. तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि द वेरी हाई प्रेशर बिकॉज देयर द वॉल्यूम कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो. तो इसी वजह से मतलब वॉल्यूम कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता. तो दैट इज़ वाई ये बॉयल्स लॉ है, ये ओनली एप्लीकेबल ऑन द आइडियल गैसेस, नॉट ऑन रियल गैसेस. Okay, I hope that this is clear. We shall look into our next law in the next video, so make sure you're watching that.